इसमें suppose a 35 years old patient, Gravida 4, para 3, and she's non-diabetic for last 4 years, and with off and on therapy, मतलब oral therapy ही है, इसमें कोई insulin injection उसको कभी नहीं लगे. And now she has presented to you at, suppose she has come for the antenatal booking and she has presented to you at 11 weeks of pregnancy. ठीक है? तो Gravida 4, para 3, and with non-diabetes for last 4 years, or now she has come for the antenatal booking at 11 weeks of gestation. ठीक है, तो ये इस सिनेरियो को हम लेके चलते हैं. अब इसमें जो है ये आमना से ही हम बात करेंगे अभी, क्योंकि इन्होंने केस प्रिपेयर किया हुआ है. तो इस केस से रिलेटेड व्हाट अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस यू नीड? जी आमना. I'm Dr. Amna, one of the exam candidate, and I have gone through the scenario and ready for the structured discussion. My patient, Gravida 4, para 3, and 35 years of age, known case of diabetes since 4 years, and she is presented to me at 11 weeks of pregnancy, and she is taking on and off therapy of oral hypoglycemic agent. And first of all, I will greet, ma'am, structure discussion करूँ ना? जी, structure discussion. अभी मैंने आपसे पूछा है कि what relevant information you need for the evaluation of this case. जैसा हम पिछले या क्लासेस में या ऑफ एंड ऑन बाकी क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि the first thing before discussing the management and the onward antenatal care, you will need certain relevant informations. उन relevant information से related मेरा सवाल ये है कि what relevant information you need for the evaluation of this patient. Okay, ma'am. First of all, I will greet my patient. I will introduce myself to the patient and will get the personal biodata of my patient, and her name and age is already given to me. That is 35 years, and her education status, and how long she is married for, and she is parity is already given to me. That is, she is Gravida 4, para 3, and I would like to know the mode of deliveries and the time of deliveries, and I will take the details of the history, and first of all, I would like to know that whether this pregnancy was planned or unplanned, and preconception counseling was done in or not, and did she took any advice before the planning the pregnancy or not, end organ evaluation prior to conception was done or not, and then folic acid was started or not. Then I will ask about the details of the control of the diabetes. I will ask her about the history of polyuria, polydipsia, polyphagia, and the recurrent vaginal discharge, history of recurrent vaginal discharge, and the recurrent urinary tract infections. And as she is a known case of diabetes, so I will also take the relevant history regarding the end organ evaluation. I will ask about the history of visual impairment, any chest pain radiating to the left arm, flanks pain, and the numbness in the hands and feet. And then I will also ask the relevant investigations regarding the end organ evaluation was done or not. Then I will ask how this pregnancy is affecting her quality of life, and then I will ask that how this pregnancy is going so far, and then I will do the trimester wise evaluation. I will ask about the dating scan was done or not. First, booking investigations, relevant investigations, urine and blood investigations were done. She took folic acid or not, and then I will ask. Then I will take the ops history as she is Gravida 4, para 3. I will ask the previous babies, the mode of deliveries and time of deliveries, any antepartum, intrapartum, and postpartum complications. Specifically, I will ask for any difficult or prolonged labor, any history of birth injuries or shoulder dystocia, any neonatal NICU admission. Then I will
then I will ask about the gynecological history, and then I will ask about the history of the diabetes in her family, and then history of history of hypertension, asthma, tuberculosis, any renal disorder, liver disorder in herself and in her family, and then I will ask about the history of any drug intake apart from hypoglycemic agent, any surgical procedure in the past, any history of allergies and blood transfusion in the past, and how then I will ask about any history of smoking or the addiction, and how is the social support at home. Then I will do the examination of my patient. First of all, I will go for the journal physical examination of my patient, and first of all I will took her BMI, and then I will take her vital signs, including the blood pressure, pulse, temperature, and then I will look for the pallor, cyanosis, jaundice, and cholinergia, clubbing, and I will also look for the, as she's a known case of diabetes, so I will also look for the pedal edema, because there is a risk of preeclampsia in these patients, and then I will go for the cardiovascular examination, respiratory examination, and chest examination, and then I will do the abdominal examination. तो इसमें relevant नहीं है कोई खास ना. So inspection, I will do abdominal examination. I will do the inspection for any scar mark like linea nigra, visible pulsations, or any stria gravidarum. मैम investigations भी मांग लूं? बेटा ये तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टिगेशन आती हैं या नहीं आती? ये तो आपको मुझे बताना है. Okay, ma'am. Then I need the certain investigations, including the baseline investigations and the specific investigations. In the baseline investigations, I need the blood group with the orange factor, complete blood count with the date, and the 24-hour urinary 24-hour blood sugar profile, and I need the hepatitis B surface antigen and anti-HCV, and then I need the urine detailed report, including the pus cells, proteins, and the sugars, and I need the dating scan of my patient, and regarding the specific examination, specific investigation, I need the end organ evaluation, as she is a known case of diabetes, so I need the renal function test, I need the fundoscopy and the ECG, and echo in liaison with the physician. ECG and fundoscopy, ECG and echocardiography. मैम echo वैसे तो more than 5 years की डायबिटीज हो तो फिर हम मैम echo मांगते हैं तो. अच्छा, ये आपका अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन खत्म हो गई? जी मैम. अच्छा, अब जो हमारे ऑडियंस है, लेट्स आस्क फ्रॉम देम कि इसमें इन्होंने क्या चीजें एक्स्ट्रा बताई या क्या चीजें कम बताई. एनी अदर वॉलंटियर? क्योंकि इन्होंने तकरीबन 6 minutes लिए to complete the relevant informations. So out of 10 minutes viva, if you spend 6 minutes in narrating the relevant informations, then rest of the viva is still left. क्योंकि उसमें जो सारी अब आगे से मैनेजमेंट चल रही है, patient is at 11 weeks now. And we have to discuss the whole of the antenatal care, and then the mode of delivery and the time of delivery, and later on the postnatal care and everything. So you have to complete relevant information maximum in 3 to 4 minutes. तो इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो इन्होंने बताई. तो इसमें any other volunteer जो कि हमें ये बताएं कि इन्होंने हिस्ट्री में क्या चीजें एक्स्ट्रा बता दी, या इसमें because she took too long to narrate the history points, the relevant history points थे, और बाकी जो एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन पे क्या चीजें मिस हुई और क्या चीजें रिपीट हुई. हम इसको ज्यादा बेहतर किस तरह से हम कर सकते थे? एनी अदर वॉलंटियर? जी बेटा, जब हम ये इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जो बाकी ऑडियंस हैं उसको गौर से सुने और वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें. यानी वो भी ये देख रहे हों कि हम अगर इसको बताते तो हम इसको किस तरह से बताते. बिकॉज दैट वे यू लर्न अलॉट. क्योंकि जब कोई दूसरा बता रहा होता है तो आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करना होता है.
और उसमें फिर आप देखते हो कि अगर हम इसको करते तो हम इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते। तो इसमें कोई वॉलंटियर हैं या नहीं है? अच्छा, इसमें बहरहाल एनीवे इसमें जो हिस्ट्री में इनकी चीजें थी, इसमें बाकी ज़ाहिर है एज वाज ऑलरेडी डिटरमिन्ड। इसका जो जो कोमॉर्बिडिटी है दैट वाज ऑलरेडी स्टेटेड। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज ऑलरेडी नोन टू अस। So what we have to go for related with the present pregnancy, क्योंकि हम इसमें present और past pregnancies को evaluate करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई साइन एंड सिम्टम्स उसके, कोई नोजिया वॉमिटिंग है, ये सब चीजें, बिकॉज नोजिया वॉमिटिंग डज इम्पेयर द ग्लाइसीमिक कंट्रोल। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है टू नो। अब इसमें वो सारा कुछ, और उसके बाद उसका जो क्योंकि एक तो हमने जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें डायबिटिक स्टेटस एंड द प्रेगनेंसी स्टेटस, ये दोनों चीजें हैं जो हमने बतानी है, बट जस्ट इन पॉइंट्स, नॉट टू बी मेंशन्ड इन डिटेल। और इसमें साइन सिम्टम्स डायबिटीज के वो हमें बताएंगे कि ये कंट्रोल था या नहीं, अनकंट्रोल था, दैट इज फेयर टू आस्क। और उसमें कोई इन्फेक्शन एसोसिएटेड है या नहीं है, ओके, आई एग्री विद दैट। और उसके बाद उसकी जो 4 साल की डायबिटीज है, 4 साल की डायबिटीज में अमूमन रीनल और इसमें रेटिनल पैथोलॉजीज नहीं होती यूजुअली, बट स्टिल देयर इज नो हार्म टू आस्क अबाउट विजुअली कोई उसके आई सिम्टम्स हैं या कोई रीनल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, बट जस्ट इन वन स्मॉल सेंटेंस। अब इसमें जो साइन सिम्टम्स हैं वो सारे इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस इज जस्ट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। नेवर फॉरगेट दैट यू आर बीइंग आस्क्ड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस प्रेगनेंसी का मसला, डायबिटीज का कंट्रोल अब तक था या नहीं था वो चीज, और पास्ट मोड ऑफ डिलीवरीज, और उसके लास्ट बॉर्न चाइल्ड क्या था उसमें। अगर ये पैरा 3 है तो पैरा 3 जाहिर है प्रीवियस 4 इयर्स में तो नहीं, लेकिन उसमें हो सकता है उससे पहले उसको जीडीएम हो। तो पहली प्रेगनेंसी से लेके थर्ड प्रेगनेंसी तक, अब तो ये 4th इसकी प्रेगनेंसी है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसको कोई डायबिटीज का मसला था या नहीं था, और वो ट्रीटमेंट उस पर जरूरत थी या नहीं थी। सिंपली बस एक सेंटेंस में बता देना काफी है। मोड ऑफ डिलीवरी, डेफिनेटली डिलीवरीज थी, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरीज थी या ये सिजेरियन था वो उसमें। और कोई उसमें सिर्फ सिंपली अगर ये भी पूछ लो ना, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन, दैट्स एनफ। फिर उसके बाद उसमें उसने एज रिगार्ड टू द डायबिटीज, उसमें उसकी जब से उसको पता चला नॉन डायबिटिक है, व्हाट ट्रीटमेंट शी हैज बीन टेकिंग, एंड वी आई सेड इन द इनिशियल सिनेरियो दैट शी हैज बीन टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट का मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स इतने बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, कभी हाई कभी कम, इस तरह से चलता है, एंड द पेशेंट इज टेलरिंग हर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल। Secondly, she is non-compliant. She has not been visiting the doctor and she has not been compliant to the medical treatment. उस सूरत में इस चीज का ये इसमें हो सकता है, रिस्क हो सकता है कि ये पेशेंट, this patient has entered into the pregnancy with uncontrolled diabetes. तो ये दो चीजें हो सकती हैं, इसलिए related with the diabetes for last 4 years and off and on treatment, ये चीजें पूछनी जरूरी है। और इसके बाद इसमें सोशल सपोर्ट, ये सब चीजें ये पूछने की जरूरत नहीं। जब हम लॉन्ग केस लेते हैं, लॉन्ग केस का हिस्ट्री प्रोफाइल फर्क होता है, और शॉर्ट केस लाइक इन दिस केस जो हम एक्सटेंडेड टॉक्स में करते हैं, तो ये जस्ट लाइक शॉर्ट केसेस होते हैं। तो इसमें आपने यू हैव टू बी टू द पॉइंट, इसमें बहुत टारगेटेड चीजें होती हैं, तो इसमें बहुत आलतू फालतू चीजें आपने नहीं पूछनी। तो इसमें बस डायबिटीज से रिलेटेड, प्रेजेंट प्रेगनेंसी के कोई साइन सिम्टम्स या वो हैं, या साइन सिम्टम्स ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लाइक जो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, या हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस है ये। बाकी पेरिफेरल नमनेस ये अमूमन ना तो जीडीएम में होती है, बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज हो तो उसमें ये हो रही होती है। और बाकी ये बस इसमें हिस्ट्री में सिर्फ ये बता देना जरूरी है। देन वी कम टू द एग्जामिनेशन। अब जो एग्जामिनेशन की चीजें हैं वो हिस्ट्री में बताना जरूरी नहीं है। अब जो इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें हैं वो भी हिस्ट्री में बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि डेटिंग स्कैन का आपने हिस्ट्री में भी जिक्र किया। अब ये जो एग्जामिनेशन है उस पे बीएमआई, दैट इज फाइन, वाइटल साइंस, दैट इज फाइन, उसमें नो नीड टू जस्टिफाई द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स।
यानी आपने ये नहीं बताना कि मैं ये क्यों करवा रही हूँ। फिर सीवीएस चेस्ट एग्जामिनेशन ओके। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे अगर प्रीवियस हिस्ट्री उसके कोई सर्जरीज की है या उसके सिजेरियन की है तो स्कार मार्क आप देख लेते हो। अदरवाइज एज रिलेटेड विद प्रेगनेंसी तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अगर ये फर्ज किया मल्टीफीटल प्रेगनेंसी हो, अभी तक हमें नहीं पता, हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और पेशेंट को खुद भी नहीं पता, तो उस सूरत में हमें फंडल हाइट और ये सारी चीजें, अगर जो फंडल हाइट 14 वीक्स से ऊपर जरा पल्पेट करना मुश्किल ही होता है, उससे नीचे पल्पेट करना मुश्किल होता है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बेसिकली जो है वो आप स्किप नहीं करते, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जरा लिमिटेड हो जाते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेसलाइन कह देना काफी है। बेसलाइन में आप बेसलाइन सबको पता है कि क्या होती है। सीबीसी है, कंप्लीट यूरिनालिसिस है, ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर है, और उसमें ब्लड शुगर लेवल प्रोफाइल को आप अलहदा से बता दें, और उसमें वायरल मार्कर्स जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। अब उसमें जो स्पेसिफिक में अब फंडोस्कोपी कर सकते हैं, मतलब इसमें जो है वो अगरचे उसकी इतनी प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग की नहीं है, बट स्टिल इट इज बेटर टू डू इट, कि उसमें रेटिनल असेसमेंट आप जरूर करवा लें। तो फंडोस्कोपी है। अब टारगेट ऑर्गन जो है वो, टारगेट ऑर्गन से आपकी क्या मुराद है वो उसको बताना जरूरी होता है। तो उसमें जो है वो 24 आवर्स ब्लड शुगर लेवल प्रोफाइल, डेफिनेटली इट इज नीडेड टू नो द पैटर्न ऑफ द ब्लड शुगर लेवल्स ड्यूरिंग 24 आवर्स। फिर उसमें जो ईसीजी है, एको तो जरूरत ही नहीं है अनलेस कि आपने ऑस्कल्टेशन पे कोई चीज आइडेंटिफाई की कि पेशेंट स्पेसिफिक हिस्ट्री देती है, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है अगर हम इसको थोड़ा सा, इसको बल्कि आप प्रैक्टिस भी दोबारा कीजिएगा आमना, कि इसको आपने सिर्फ 3 या 4 मिनट में बताना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर आपका बाकी वाइवा जो है वो उसमें शॉर्टकट करना पड़ सकता है। अब यहाँ तक जो आपका जो सारा आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले ली, अब इसमें सपोज मैं आपको ये बताती हूँ कि द पेशेंट सो फार उसके क्योंकि जाहिर है जब इसमें केस को आगे चलाना होता है, अभी इस केस को 2 तरीके से हम आगे चला सकते हैं। या तो ये कि मैं इसमें, आपने मुझे बता दिया कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ये मैंने इसमें पूछनी है। अब इसमें एक तो बाइफर्केशन में ये चीज हो सकती है कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें एग्जामिनर आपको बता दे कि इस पेशेंट का जो है वो ब्लड शुगर प्रोफाइल के इतना है, पेशेंट के जो प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरीज हैं वो ये हैं, और उसमें यानी एक खास केस के साथ हम लेके उसको चलें, तो ये ऑनगोइंग केस कहलाता है कि इसमें उस केस को ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर दे देता है, और उसके साथ फिर आपने उसकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट परटेनिंग टू दैट पर्टिकुलर केस आपने चलानी होती है। तो इसमें या तो वो सारा सिनेरियो एग्जामिनर आपको बताएगा, और इट कैन बी जस्ट अ जनरल डिस्कशन रिलेटेड नाउ द टॉपिक डिस्कशन, ये फिर एक टॉपिक डिस्कशन हो जाएगी। यानी या तो ये केस डिस्कशन हो सकती है एक एक इंडिविजुअल केस के तौर पे, या फिर ये टॉपिक डिस्कशन है कि अब ये टाइप 2 डायबिटीज है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है, तो इसमें अब आपकी आगे ऑनवर्ड मैनेजमेंट किस तरह से चलेगी, तो ये एक टॉपिक डिस्कशन होगी। तो इसको हम दोनों तरीके से चला के देख लेते हैं। तो आमना, अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट, हाउ यू विल एड्रेस द पेशेंट। Ma'am, first of all, I will consult my patient. I will explain the diagnosis to the patient that she is a known case of diabetes, and it is a high risk pregnancy. And I will involve the multidisciplinary team, including the diabetologist and dietitian, senior obstetrician, pediatrician, and anesthetist. And then I will explain Why the fetal anesthetist at this stage? मैम इस स्टेज पे तो मैम एट 36 वीक्स मैम इवैल्यूएट कर लेंगे। तो जरूरत नहीं है अभी मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, दैट इज ओके टू डिस्कस विद, लेकिन ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में एट दिस टाइम कम्स द रोल ऑफ डाइटिशियन एंड फिजिशियन, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेसिकली होते हैं, उनका रोल होगा, और यही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इस वक्त होगी। अभी पीडियाट्रिशियन की जरूरत नहीं है, अभी एनेस्थेटिस्ट की जरूरत नहीं है।
और इसमें Okay, और ma'am. क्या फिर आप इसको Then- बताएंगे? Then, ma'am, I will explain her regarding the fetal-maternal implications of the disease on the mother herself and her baby. And I will explain her the fetal-maternal risks. And as my patient is taking the on and off therapy, so I will advise her regarding to maintain the 24 hours blood sugar profile. And then according to the blood sugar profile, then I will start with the management. My aim of management is to maintain her ओके, blood नहीं, अभी glucose अभी levels. आपका जो काउंसलिंग है वो पूरी नहीं हुई। इनिशियल काउंसलिंग एट दिस स्टेज, वो उसमें काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पेशेंट की केयर का, मैनेजमेंट का। तो काउंसलिंग में और क्या चीजें शामिल हैं? The patient is a Ma'am, non-compliant patient, off and on yes. taking the medicines. क्योंकि हमें अभी अब हम चूंकि इसको केस को डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब केस बेस्ड डिस्कशन नहीं है, बट ना इसको मैं हम इसको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि मैं आपको ब्लड शुगर प्रोफाइल बता दूं सारे, और इसमें जो ब्लड शुगर प्रोफाइल है वो सारा इसमें आपको पता चल जाए और उसके बेस पे फिर आप लेके चले उसमें क्या क्या रिस्क है। अब फीटो मैटरनल रिस्क जो आपने मुझे बताए हैं उसमें व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन एट दिस स्टेज एट 11 वीक्स टू द पेशेंट? Yes, ma'am. Ma'am, I will explain her the fetal-maternal risk. At this stage, I will counsel her about the risk of the miscarriage and the risk of the maternal hypoglycemia and नहीं, the इसके अलावा फीटल रिस्क में और क्या चीजें, इसमें और क्या चीज आएगी जो बहुत ma'am, इंपॉर्टेंट risk है of पेशेंट को बताना? ma'am miscarriage. मिसकैरेज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो फर्स्ट Ma'am, ट्राइमेस्टर risk रिस्क of होते हैं नॉन anomalies. डायबिटिक। Ma'am, risk of anomalies, fetal anomalies. यस, रिस्क ऑफ एनोमली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ma'am. क्योंकि देखो इसमें अब हम ये कह रहे हैं बार बार कि पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है, अपेरेंटली हमने यही सोचा है कि वो कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस होने की वजह से मेडिसिन ऑफ एंड ऑन ले रही है। सो देयर इज अ बिग रिस्क दैट द डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड, which will be determined by the 24 hours blood sugar profile, but will be confirmed by, अब ये जो risk of anomalies है इसका जो हमें कन्वे करनी है इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट with the background of what investigation? HbA1c. HbA1c, that is mandatory to do in this case. Yes, ma'am. HbA1c का रोल इसी लेवल पे तो आता है। एक तो ये चीज कि जब पेशेंट हमारे पास थोड़ा सा लेट आए तो इसमें ये हमें डिफरेंशिएट करता है बिटवीन GDM एंड द टाइप 2, एंड सेकेंडली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन वी डू HbA1c, देन डेफिनेटली द रिस्क एसोसिएटेड रिस्क ऑफ एनोमलीज वो हम उसको बता सकते हैं पेशेंट को कि ये लेवल्स इतने हैं, इस वजह से इसमें रिस्क ऑफ एनोमलीज है जो काफी ज्यादा है या नहीं है या मॉडरेट है, क्या है वो सारा कुछ हम उसको काउंसलिंग में बताएंगे। सो योर काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, क्योंकि वो फैक्ट्स जो हैं वो फिर उन्हीं के बेस पे आपने पेशेंट को बताना है। सपोज सर HbA1c इज ओके, देन इन द काउंसलिंग यू विल say that though there is pre-existing diabetes, but as the HbA1c is normal, so the risk of fetal anomalies is minimal, जो according to general population होता है वो वही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन भी आपने मिस कर दी थी, वो क्या है? एक और इन्वेस्टिगेशन जो मेरे भी ज़हन से निकल गई लेकिन आप लोगों ने भी मिस कर दी, वो और क्या है? मैम डाउन सिंड्रोम टेस्टिंग कराते हैं 11 हाँ? to 13 plus 6 वीक्स पे डाउन, इसमें नकल ट्रांसफुलेंसी नहीं देखते वो हैं तो हम। बात की बात है ना, हम तो अभी 11 वीक्स पे हैं, तो इसमें और क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस में ये जो टाइप 2 डायबिटीज है एंड मोर सो इन टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उनमें ऑटो इम्यून थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं, इवन इन अप टू 44% ऑफ द केसेस। तो इसलिए ये थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना हर डायबिटिक पेशेंट में जरूरी है।
इवन इन GDM जिनमें प्री डिस्पोजिशन है अंडर इफेक्ट ऑफ जो प्रेगनेंसी चेंजेस हैं उसकी वजह से भी, बट लेटर ऑन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टाइप 2 डायबिटीज। तो उसमें भी हम पोस्ट नेटल टाइम पीरियड पे थायराइड फंक्शन करवाते हैं, बट इन अ नॉन डायबिटिक पेशेंट प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो हम उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट हमने करवाने ही करवाने हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल टेस्ट। पेशेंट आपको सिम्टम दे रहा हो या ना दे रहा हो, बिकॉज सिम्टम्स आर वेरी वेरिएबल इन हाइपोथायराइडिज्म। पहले हम कहते थे कि हम सिम्टम होंगे तो हम वो होगा, लेकिन बाद दफा पेशेंट को सिम्टम नहीं होते हाइपोथायराइडिज्म के भी, एंड नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के केसेस में, उनमें तो आप सब क्लिनिकल भी हो तो उसको आप जरूर एवेलुएट करते हैं, एंड मोर सो व्हेन देयर इज प्री एग्जिस्टेंट डायबिटीज तो उसमें आपने जरूरी करवाने हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। चलें जी, अब इसमें हम काउंसलिंग पे थे, ठीक है। काउंसलिंग जो है उसमें और बहुत सारी चीजें हैं टू कवर। आपने फीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात की जिसमें हमने ऐड कर दिया एनोमलीज का भी रिस्क अलोंग विद द मिसकैरेज। और इसमें आपने क्या बताना है? देखें ये फिर वही वो जो मैं एक बात जो बार बार रिपीट करती हूँ कि टाइम बाउंड डिस्कशन। सो यू हैव जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट टू पिन पॉइंट द रिस्क फैक्टर्स, या उसमें सिर्फ उसमें पॉइंट्स बता दें कि मैंने इन पॉइंट्स पे उसकी करनी है डिस्कशन, उसको आगे से मजीद खोल के बताने की इतनी जरूरत नहीं होती। सो यू विल एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द रिस्क, फीटो मैटरनल रिस्क, ठीक है। और अभी जो कि 11 वीक्स पे है तो इसमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड वो सारा, और ऑनगोइंग रिस्क ऑफ फीटल ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटीज ऑन हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, वो सारी चीजें। और इसके अलावा आपने क्या बताना? मैम मैम रिस्क मैम या मैनेजमेंट कंटिन्यू करूं? चलो मैनेजमेंट काउंसलिंग भी अब कर सकते, लेकिन देखो मैनेजमेंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, कि वो है जो पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है ना, आपके पास ओपीडी में आके बैठा, उसकी एक जो सेलियन फीचर्स थी वो मैंने आपको बता दी, आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उससे हिस्ट्री में पूछ ली, एग्जामिनेशन पे देख ली, और फिर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस को ऑर्डर कर दिया। अब उसके बाद आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग के बगैर मैनेजमेंट आगे चल ही नहीं सकती। तो इस वजह से काउंसलिंग जो है वो उसमें आप क्या क्या चीजें बताएंगे? मैम आई विल आई विल आपने जो counsel बता दी है her. उसके अलावा क्या चीजें बताओगे? Ma'am, I will counsel her that if she maintains the blood sugar levels in the target values, then there is a low risk of the there is low risk of the induction of labor and birth नहीं, injuries आप and इसको सिर्फ इस तरह से कह दें, आप इसको इस तरह से वो ब्रीफ कर सकती हैं कि आई विल एक्सप्लेन टू हर द टारगेट लेवल्स टू बी अचीव्ड विद yes, ma'am. बाय एडहेरिंग टू द थेरेपी एडवाइज्ड बाय, मतलब जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको थेरेपी को एडहेयर करेगी, ठीक है। वो सारा कुछ लाइफस्टाइल एडेप्टेशंस, उसने क्या डाइट और एक्सरसाइज का, इसमें मैंने वेट रिडक्शन, अगर वो ज्यादा ओबीज है तो वेट रिडक्शन, ये सारी चीजें उनको फॉलो करना बड़ा जरूरी। सबसे ज्यादा मुश्किल पेशेंट के लिए डाइट को एडहेयर करना ही होता है, तो एक्सरसाइज और वो सारा कुछ। फिर उसमें ये कि वंस शी इज ऑन द ट्रीटमेंट देन हाउ शी हैज टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जो बाद दफा प्रेगनेंसी में जिसकी अवेयरनेस जरा मुश्किल होती है, पेशेंट उसको प्रेगनेंसी के साथ ही लेबल कर रहा होता है जबकि वो हाइपोग्लाइसीमिया एक्चुअली होता है। और उसके अलावा फिर जो है उसमें टाइम एंटीनेटल केयर उसमें कितनी होनी चाहिए, 1 to 2 वीकली अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर कंट्रोल, फिर वो उसमें उसने करनी है। फिर उसके बाद उसकी ऑनवर्ड जो हमने इन्वेस्टिगेशन, जो फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशन होंगी वो, फिर उसमें जो नीड फॉर, फिर उसके इसके बाद आपने फिर टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी भी उसके साथ मेंशन करना है, मतलब ये कि हमने ये सारा कुछ डिसाइड करना होगा बाय व्हाट टाइम पीरियड, ठीक है। उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अगर पहले उसके फर्ज किया सारी नॉर्मल डिलीवरीज थी, तो अगर पहले सारे सेक्शंस हैं तो उसमें तो फिर कोई एम्बिग्विटी वाली बात ही नहीं, होना सेक्शन ही है। बट सपोज इफ शी हैज वेजाइनल डिलीवरीज प्रीवियसली, तो उसमें नीड फॉर सिजेरियन सेक्शन विल बी इंक्रीज्ड इफ द बेबी ग्रोज फास्टर देन द नॉर्मल ग्रोथ। और उसके बाद जो है वो इसके जो है वो इसमें व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन, फीटल कॉम्प्लिकेशन, फिर उसमें जो बाकी आगे से रिस्क टू द बेबी हैं वो क्या है, उसमें नीड फॉर NICU क्या है, ये आप सारा कुछ इनिशियल विजिट पे बता रहे हो। और ये इसलिए आप बता रहे होते हैं कि पेशेंट
पेशेंट को जब आप सारी चीजें, खास तौर पे इस पेशेंट को जो नॉन कंप्लाइंट है, क्योंकि ये जब सारी चीजें आप बताएंगे विच आर द रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स एंड द रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट, तो फिर उसमें आपने जो है वो कम से कम पेशेंट को आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इसमें कितना जरूरी है कि उसका रेगुलर विजिट्स का होना। और उसमें ये कि अगर बेबी ऐसा कॉम्प्रोमाइज निकलता है एनआईसीयू की केयर उसमें हो सकती है, बेबी को भी डायबिटीज और ओबेसिटी डेवलप करने के रिस्क हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन हैज टू बी डिस्कस्ड इन क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स कि उसमें नाउ शी विल बी पैरा 4 आफ्टर दिस प्रेगनेंसी इज ओवर, तो उसमें फिर उसकी कॉन्ट्रासेप्शन को करना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली the counseling will cover all these points. Now after counseling, what will be your plan of management in this case? आपने counseling उसकी कर दी, what will be your plan of management now in this case? Ma'am, first of all, I will explain. I will educate her about the target levels, and that fasting should be less than 5.3 millimole per liter, and her 1 hour levels levels should be less than the 7.8 millimole per liter, and the 2 hours should be less than 6.4 millimole per liter. And I will counsel her regarding the lifestyle modification, including the dietary advice, and including the and I will provide her with the diet chart, and then I will also advise her regarding the daily 30 minutes brisk walk to post meal to improve her blood glucose levels. And if the blood glucose levels are not achieved within the target values after in 1 to 2 weeks, then I will I will start her with the metformin. And if blood sugar levels are still not achieved with the metformin, then I will start her with the insulin therapy. And I will maintain her blood sugar. I will ask her to maintain her blood sugar profile, six level blood sugar profile. And I will ask her about the frequent antenatal visits and 2 to 4 weeks apart, and also counsel her regarding the use of the glucometer and the insulin storage, and about the risk of the hypoglycemia and its management. And at 36 weeks, if everything remains okay and her blood sugar profile remains satisfactory, and her fetal biometry is according to her dates and I will reassess her live presentation, estimated fetal weight, like her volume. If then I will at 36 I will plan her, discuss her regarding the mode of the delivery and the time of delivery, and I will involve the pediatrician anesthetist. And then when she is a known case of diabetes, so my plan is to take her pregnancy as close to term as possible, and my aim is to deliver her between the 37 to 38 plus 6 weeks of pregnancy. When she goes into labor, then comes interpartum management. When she goes into labor, my aim is to maintain her blood glucose levels between 4 to 7 millimole per liter, and I will monitor her levels on 1 hourly basis, and do the continuous electronic fetal heart rate do the continuous fetal heart rate monitoring, and establish the labor care guide. And once the baby is delivered, I will hand over the baby to the pediatrician for the evaluation. And regarding the postnatal monitoring, it involves the certain maternal monitoring and the fetal monitoring. Regarding the maternal monitoring, my target levels, my aim of target level would be 5 to 9 millimole per liter. And I will if she was on insulin, then I will decrease the dose of the insulin, and will do the blood sugar glucose levels monitoring to establish the appropriate dose. And if she was the known case of gestational, if she was the gestation diabetes, then I will stop the oral hypoglycemic agents. And I will counsel her regarding the frequent early initiation of the breastfeeding, ideally within the 30 minutes, and will also counsel her regarding the frequent breastfeeding 2 to 3 hours apart. And also I will also advise her regarding the contraception. And regarding the fetal monitoring, I will check the blood sugar levels of the baby at 2 to 4 hours interval.
and then I will also, that is the known case of diabetes, so I will counsel her about, then at 6 weeks I will refer back to her physician and will advise regarding the preconceptual counseling in the next pregnancy, and will start folic acid 3 months prior to the pregnancy, and to take advice before planning the pregnancy, and to start the aspirin from 12 weeks onward in the next pregnancy. And also the long-term effects, fetal effects about the diabetes in her baby and the obesity. अच्छा, इसमें हाँ जी, ऑडियंस अगर कोई राय देना चाहें तो जी, छोटा सा बेबी है, इसका इतना बड़ा बेबी तो नहीं क्योंकि है। देखो इन्होंने हाँ, और 4 pelvis मिनट्स भी ठीक इन्होंने है। हमें वो 4 तो इन्होंने मिनट्स में घर में सारी डिलीवरीज मैनेजमेंट कराई बताई है ना। जी बताइए। यार फोन एम्बुलेंस वाले को बता के आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। हाँ जी, ऑडियंस में से कोई बताएगा कि इसको हम बेहतर कर सकते, क्या था इनकी प्रेजेंटेशन, मतलब कैसी थी जो अभी इन्होंने हमें सारा मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा बताया। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? हाँ जी, नो वन इज रेडी टू कमेंट। जी आमना, हम आप ही से पूछते हैं। What do you think? How was your opinion about antenatal care management? या उसमें मैनेजमेंट प्लान जो था, मैम लेंथी were you confident about it या आपके ख्याल में थोड़ा सा haphazard था? मैम हैफेजेड था। तो इसको हम कैसे ज्यादा बेहतर कर सकते थे? देखो, जब हम एक मैनेजमेंट केयर प्लान की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ज्यादा बेहतर होता है कि आप एक सीक्वेंस में चीज बताएं। ठीक है, सीक्वेंस में बताने का मतलब ये है कि किस जेस्टेशन पे आप क्या करोगे। और दूसरी चीज ये कि 2 to 4 वीकली एंटीनेटल केयर हम नहीं इसमें करेंगे, इसमें 1 to 2 वीकली करेंगे, बिकॉज द पेशेंट इज नॉन कंप्लायंट। पेशेंट नॉन कंप्लायंट है, वो ट्रीटमेंट इरेगुलर देती रही है, और उसमें हम इसको 1 to 2 वीक्स क्यों देंगे डाइट और एक्सरसाइज के साथ, while she is already on the treatment, though it was an off and on treatment. तो इसमें अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल्स आपने बताना है कि मैंने इसको पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही रखना है, या इसको, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज है, ये जेस्टेशनल नहीं है जिसको आप उसमें जो है वो लेके चलेंगे, या एक न्यू इन ऑनसेट डायबिटीज वो टाइप 2 नहीं है जो कि अर्ली आइडेंटिफाई हुई और आपने उसको पहले लाइफस्टाइल एडेप्टेशन पे देखा। तो इसमें डाइट एक्सरसाइज विल गो अलोंग विद द अदर मैनेजमेंट, और उसमें जो आपने डिसाइड करना है अबाउट द ओरल एंड द इंजेक्टेबल हाइपोग्लाइसीमिक थेरेपी, वो फिर आपने ब्लड शुगर लेवल्स पे आइडेंटिफाई करना है। टारगेट आपने बता दिया कि टारगेट टू बी अचीव्ड आर दिस, लेकिन ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग इतना होगा तो मैं ये करूंगी, फास्टिंग इतना होगा तो फिर ये करेंगे। सो यू हैव टू लिंक इट विद द अल्टीमेट ब्लड शुगर लेवल्स, जिसमें ज्यादातर जो डिटर्मिनेंट होता है वो फास्टिंग ही होता है। तो इन सम केसेस रैंडम ब्लड शुगर भी उसका एक बन जाता है क्राइटेरिया फॉर स्टार्टिंग इधर ओरल और द इंसुलिन थेरेपी। अब इंसुलिन अलोन या इंसुलिन विद मेटफॉर्मिन, आपने उसको सिर्फ एक सेंटेंस में बता देना, आप उसकी आगे से मजीद डिटेल नहीं बताओगे कि इफ द ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग इज अबव 126, जो कि गाइडलाइन के मुताबिक है, हमारी भी और नाइस की भी, तो उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल स्टार्ट विद, या फिर अगर कोई उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी पेशेंट में है, तो उस सूरत में आप डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ आप उसको इंसुलिन थेरेपी शुरू करोगे विद और विदाउट मेटफॉर्मिन। वो मेटफॉर्मिन को साथ कंबाइन करना है या नहीं करना, वो फिर आपकी डोज, अगर डोज बहुत ज्यादा आ जाती है इंसुलिन की कैलकुलेटेड डोज, तो फिर आप उसको मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करते हो। अगर पेशेंट का बीएमआई ज्यादा है तो भी आप मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करते हो। तो ये कुछ क्राइटेरियाज उन दोनों को कंबाइन करने के भी हैं, बट इट कैन बी, आप सिर्फ इतना सा कह सकते हो कि इंसुलिन विद और विदाउट इन कॉम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन। तो आपने इसको किस तरह से बता दिया।
फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इसको जो आपने इनिशियल एक रेटिनल और जो है रीनल असेसमेंट कर ली, उसके बाद फिर आपने उसको एट अराउंड 20 वीक्स आपने उसका फिर एनॉमली स्कैन करना है. In an uncontrolled, the patient, if the patient has entered into an uncontrolled, with an uncontrolled diabetes, तो उसमें चूंकि risk of cardiac anomalies is increased, तो उसमें आप फिर fetal echo जरूर करवाओगे. लेकिन GDM में जरूरत नहीं होती, या फिर अगर patient is well controlled, तो फिर उसमें जरूरत नहीं होती. ठीक है. फिर उसके बाद जो 20 से बाद फिर आगे आपने जो 28 वीक्स आपने देखो इसको ब्रीफली बताना. तो 20 वीक्स के बाद फिर रूटीन की केयर एट 1 to 2 वीक्स इंटरवल अकॉर्डिंग टू SOGP गाइडलाइन. जो नाइस गाइडलाइंस होती हैं उसमें उनके पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं, कंप्लायंट होते हैं, वो घर पे होम मॉनिटरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं. दे यूजुअली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डॉक्टर, तो उनकी अवेयरनेस बहुत होती है. इस वजह से वो 2 to 4 वीकली इंटरवल पे एंटीनेटल केयर कर सकते हैं हमारी कंट्री में, एंड स्पेशली इन द पेशेंट्स लाइक दिस 1 to 2 वीकली फॉलो अप विल बी कैरिड आउट. अब उसके बाद फिर 28 वीक्स पे जाके, अब डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, अगेन इफ इट हैज बीन नॉट वेरी गुड कंट्रोल, तो आप रेटिनल असेसमेंट फिर से एक दफा कर लेते हो एंड रीनल असेसमेंट. ग्रोथ स्कैन आपने करना शुरू करना है फ्रॉम 28 वीक्स ऑनवर्ड एट एवरी 3 वीकली इंटरवल. मिनिमम इसको 2 to 3 वीकली इंटरवल पे हम करते हैं. फिर उसके बाद 32 वीक्स पे फिर आपने फिर ग्रोथ स्कैन करवाया, फिर उसमें AFI भी देखा, और रूटीन की इन्वेस्टिगेशन आपने रिपीट करवानी है. रूटीन की इन्वेस्टिगेशन आपने 28 वीक्स पे भी रिपीट करवाई. फिर आपने इसको रूटीन की केयर एट 1 to 2 वीकली इंटरवल. 36 वीक्स पे फिर आप ग्रोथ स्कैन करवाओगे. फिर उसमें पेशेंट को आपने अब एजुकेट कर देना है अबाउट द डिलीवरी प्लान, बिकॉज बाय दैट टाइम you know that what has been the control of diabetes so far, is there any associated fetal या maternal complication या नहीं. क्योंकि बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि मैं 37 वीक से पहले डिलीवर करने की जरूरत पड़े, तो उस सूरत में हमें जो है वो बहुत डायबिटीज में खासतौर पे बहुत कम होता है. अगर कोई बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है या वेस्कुलोपैथी है, कोई सीवियर IUG आ रहा है, हाइपरटेंशन का भी रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ जाता है. तो ये सारी चीजें हैं जो हम उसकी रूटीन की विजिट्स पे उसमें डालेंगे. अब जो इसमें जो हमने डिलीवर करना है इसमें डिलीवरी टाइम इज इंडिविजुअलाइज्ड, बट डेफिनेटली इट रेंज फ्रॉम 37 to 39 वीक्स. 37 से 39 वीक्स पे बेस्ड अपॉन द मैक्रोसोमिया या उसके पॉलीहाइड्रामनियोज है या और कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है या कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर बेस करता है टाइम ऑफ डिलीवरी. और अगर आपने इसको 39 वीक्स पे डिलीवर करने का डिसाइड कर लिया बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड देयर इज नो फीटोमैटरनल कॉम्प्लिकेशन, तो फिर आप उसको 39 वीक्स तक लेके जाते हो. लेकिन at 38 weeks you start fetal surveillance. ठीक है, fetal surveillance में सारा उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल और ये सब चीजें आ जाती हैं. अभी यहाँ पे रोक के ये जो है, अगर जो स्ट्रक्चर्ड वाइवा जो चल रहा होता है, हो सकता है पेशेंट ये इसी डिस्कशन में कहीं पे भी सपोज एट 34 वीक्स एग्जामिनर आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि द पेशेंट हैज सडनली बिकम सिक, यानी कीटोएसिडोसिस वाला सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर सकता है. और उसमें जो है वो सारे फिर उसकी मैनेजमेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की डिस्कस हो सकती है, उसमें फीटल इम्प्लीकेशन डिस्कस हो सकती हैं और ये सारी चीजें. लेकिन अगर हम इसी तरह से इसको चला रहे हैं केयर जो प्लान है, तो उसमें फिर 39 वीक्स पे यू विल ऑफर इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन, वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड फॉर हर. तो इसके बाद जो है वो फिर इफ द पेशेंट हैज बीन selected for induction of labor और उसमें ट्रायल ऑफ लेबर हमने देना है, उसके पहले सारी डिलीवरीज नॉर्मल थी और कोई ऐसा मसला नहीं था, तो फिर देन कम्स द रोल ऑफ इंट्रापार्टम मैनेजमेंट. इंट्रापार्टम मैनेजमेंट में आपके टारगेट टू बी अचीव्ड क्या है, जो उसमें ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो आपको बस बता देने काफी हैं. यू विल मेंटेन द पार्टोग्राम लेबर केयर गाइड के मुताबिक आप चलोगे, और उसमें जो है वो आपने ये सारी चीजें, और उसमें ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग भी
will be after every 1 to 2 hours. तो टाइप, क्योंकि इसमें हम फिर ये नहीं कहेंगे कि अगर जीडीएम होगा तो, क्योंकि ये पेशेंट ही टाइप 2 डायबिटीज का है, तो इसमें जीडीएम को हमने लेके नहीं आना। ये टाइप 2 डायबिटीज का केस सिनेरियो, आपका इनिशियल सिनेरियो टाइप 2 डायबिटीज है, इसलिए जीडीएम इसमें कहीं नहीं आता। तो अलबत्ता जीडीएम का अलहदा से कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो वो और बात है। तो इसलिए फोकस योर डिस्कशन टू टाइप 2 डायबिटीज ओनली। और फिर उसके बाद जब इंट्रापार्टम केयर वाली जो बात आती है, उसमें अगेन वही ब्लड शुगर प्रोफाइल टू बी मेंटेन, वो क्या है उसमें जो है वो उसमें हम सबकुटेनियस इंसुलिन भी दे सकते हैं। अ बेटर थिंग इज टू गिव द इंसुलिन बाय इन्फ्यूजन फॉर्म, इन्फ्यूजन पंप के साथ होती है, और उसमें आपका टारगेट ये होता है कि इसको इस में मेंटेन करना है, इस लेवल पे मेंटेन करना है, बिकॉज यू हैव टू प्रिवेंट मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग लेबर, जो कि होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो रही होती हैं। लेबर का एक प्रोसेस अपना एक स्ट्रेसफुल लेबर होता है, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, और यही हाइपरग्लाइसीमिया जो है ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ा देता है। और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ट्रीट करना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उसमें उससे बहुत ज्यादा जो न्यूरोनल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसको आपने अवॉइड करना होता है। नियोनेटल जो है इसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, तो इसलिए जो है उसमें अचीव करना, एक टारगेट लेवल अचीव करना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी हिसाब से आप जो ब्लड जो इंसुलिन की डोज है वो कम ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ये तो था इसका यहाँ तक। फिर उसके बाद जो पोस्टपार्टम है, पोस्टपार्टम में एज इट इज अ केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल्स मे बी यू नीड टू रिड्यूस द डोज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो ओरल है, ओरल को तो आप अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल ही आप कर रहे होते हैं। अगर इंसुलिन पे पेशेंट डल गया, पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पे है, तो फिर आपने उसकी डोज को हाफ करना होता है, 50% रिड्यूस करना होता है, बिकॉज द प्लेसेंटल इफेक्ट इज नो मोर देयर। तो इसलिए प्लेसेंटल इफेक्ट को आपने जब बाईपास हो गया तो फिर उसकी डोज जो है वो कम हो जाएगी, तो इसको फिर हमने उस तरह से मॉनिटर करना होगा। तो अब जो इसमें जो ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग है वो 4 आवरली आप करोगे, और उसमें अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो 2 आवरली या 1 आवरली भी हो सकता है, दैट इज डिबेटेबल, मतलब उसमें वेरिएबल उसका टाइम पीरियड होता है। और उसके अलावा फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली शुरू कर देनी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, इस वजह से पेशेंट इज ऑलवेज एडवाइज टू टेक अ स्नैक बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद फिर आपने इसका जो रिपीट जो ब्लड शुगर लेवल्स करवाने होते हैं वो 6 to 12 वीक्स पे करवाने होते हैं। ये तो नॉन डायबिटिक है, इसमें हम 6 वीक्स तक का इंटरवल का वेट नहीं करते अमूमन, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट स्टेटस है वो हमें 6 वीक्स पे ही पता चलता है। इन बिटवीन वी कंटिन्यू टू मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल। पेशेंट को हम एजुकेट कर देते हैं कि हाउ टू सेल्फ मॉनिटर एट होम, और if that is not possible then patient is advised to come to the hospital, and then because we have to carry on with the oral treatment या insulin भी अगर patient को मिल रही थी पहले तो we can switch on to the oral therapy which is more feasible for the patient to take। तो क्योंकि इंसुलिन वो घर जाके नहीं लगाएगी, ये पेशेंट जो ओरल भी नहीं लेती थी वो इंसुलिन कैसे लगाएगी, तो ओरल कैन बी कंटिन्यूड लेटर ऑन। तो इसलिए जो है वो इसको हम उसको ब्लड शुगर लेवल्स की मॉनिटरिंग के साथ साथ ही चलेंगे, होम मॉनिटरिंग, एंड इफ नॉट पॉसिबल तो फिर वो आके बीच में 1-2 दफा चेक करवा सकती है। 6 वीक्स पे चूंकि उसका एक पोस्ट नेटल फॉलो अप होता है, या फिर जैसे बेबी की वैक्सीनेशन या वो सारी चीजें जिसके लिए उसको आना पड़ता है, इस वजह से 6 वीक्स पे हम एक एवेल्युएशन उसकी कर लेंगे। और इसकी जो 6 वीक्स की एवेल्युएशन है वो फिर हमने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स या HbA1c के साथ हम करते हैं। अब जो पेशेंट इसका यहाँ पे फिर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन इसमें हर तरह की कॉन्ट्रासेप्शन की जा सकती है एक्सेप्ट फॉर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इसमें जो है वो हम एडवाइस नहीं करते हैं, स्पेशली इन द फीडिंग फेज, या इसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रेपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं, IUCDs कर सकते हैं, मायरीना रख सकते हैं, बेरियन मेथड, ये सब के सब इसमें प्रैक्टिसेबल है। और पेशेंट 35 इयर्स की है नाउ पैरा 4, तो उसमें एक कंसिडरेशन दी जा सकती है फॉर ट्यूबल लाइगेशन एज वेल। तो ये तो था जो आपका टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड जो डिस्कशन है हमारी। इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो वो हम देख लेते हैं,
और फिर थोड़ा सा GDM को भी कवर कर लेते हैं। जी मैडम, जो ड्यूरिंग लेबर आपने बताया कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क इसमें ज्यादा होता है, तो मैम हम तो यूजली स्लाइडिंग स्केल पे ही वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मैम इसमें इसका देखो थोड़ा इसमें डिफरेंट रिजीम्स है। एक तो ये कि आपने स्लाइडिंग रिजीम भी किसी हद तक एप्लीकेबल इसलिए भी होती है कि आप जितने ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हुए उसके हिसाब से हमने इसको कर दिया। अब डेफिनेटली इंट्रापार्टम रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इज मोर। अब जो पेशेंट पहले से इंसुलिन ले रहा है वो तो इंसुलिन की डोज को ही हमने ऊपर नीचे करना है, या उसमें हम रूटीन की डोज को कंटिन्यू भी करते हैं, क्योंकि हम अमूमन आईवी इंसुलिन नहीं दे रहे होते, क्योंकि इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होते। तो हालांकि सबसे आइडियल चीज वो है कि उससे सीरम लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं होते, वेरिएबल नहीं होते, हाइपो एंड हाइपर दोनों चीजें अवॉइड हो जाती हैं उसमें। लेकिन ये है कि उसमें हम सबकुटेनियस भी दे सकते हैं एक एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसको सबकुटेनियस दे सकते हैं जैसे हम एज पर रूटीन दे रहे थे। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल भी दे दें। स्लाइडिंग स्केल इज नॉट आउट, इवन ये पोस्ट ऑफ केसेस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जितने आए हैं, यानी जितना ब्लड शुगर प्रोफाइल इम्पेयर हुआ अंडर सर्टन ट्रिगर्स, किसी ट्रिगर की वजह से टेम्परेरीली हुआ, तो उसको टेम्परेरीली उस इंसुलिन के साथ हम कवर कर लें। तो ये तरीका एप्लीकेबल डेफिनेटली है, तो वो उसको भी हम उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट एवर रिजीम वी अडॉप्ट, हमारा एम जो जो ब्लड शुगर लेवल्स को एक रेंज के अंदर रखने का है, बस वो अचीव होना चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव दैट ब्लड शुगर लेवल रेंज, जो कि हम कहते हैं कि इसमें जो है वो 4 to 7 मिलीमोल्स के हिसाब से हो, तो वो उसके अंदर ही रहना चाहिए जो भी रेजीम आप यूज करें। इस पे कोई ऐसी जो है वो क्वेश्चनेबल बात नहीं है कि ये रेजीम ठीक है या ये रेजीम गलत है। लेकिन जो आपकी गाइडलाइन में जो चीज होती है उसको हम स्टैंडर्ड तो समझते हैं। जैसे अब नाइस की जो मैं बात कर रही थी कि नाइस में वो तो कहते हैं 41 वीक तक भी ले जाएं जो कंट्रोल्ड है, लेकिन हम तो 41 वीक तक तो नहीं लेके जाते। हमारा पॉपुलेशन जो टाइप है वो फर्क है, हमारी जो बाकी चीजें हैं वो फर्क है, हमारा लिटरेसी रेट फर्क है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्क है। तो इस वजह से अपनी जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं को हम ज्यादा फॉलो करते हैं, और हमारी गाइडलाइंस ज्यादातर WHO गाइडलाइन के ऊपर बनी हुई होती हैं, डेफिनेटली टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द अदर गाइडलाइंस एज वेल। नाइस गाइडलाइंस है या ACOG के हैं, वहां से भी कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं, लेकिन वो चीजें जो हम अपनी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कहते हैं 2 to 4 वीक्स के बाद आप एंटीनेटल विजिट करें, हम तो इतनी रूटीन में विजिट करते हैं क्योंकि हमारे पेशेंट को पता ही नहीं होता कि डेंजर साइन सिम्टम्स क्या हैं, तो वो हम खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसीलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, काउंसलिंग इसीलिए बहुत जरूरी होती है, टेकिंग यानी हम बेसिकली पेशेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए इन हर मैनेजमेंट केयर प्लान, तब ही वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और वो तब ही हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेगी। मैम, मोड ऑफ डिलीवरी अगर पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉन डायबिटीज है, तो मैम हम आफ्टर 39 वीक्स करें या 40 वीक्स पर करें? मैं गाइडलाइंस तो नहीं 39 पे जो हमारी अपनी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 39 वीक्स आखिरी हफ्ता है जिसपे आपने कर देनी होती है। ठीक है, देखो हमारी जो मतलब हम भी जो ऑब्जर्व करते हैं चीजें, हमारी पॉपुलेशन मेल नरिश्ड भी बहुत है। अब जनरल पब्लिक हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट पेशेंट्स की बात नहीं कर रहे। तो उनमें मेल नरिशमेंट इतनी होती है, मेल नरिशमेंट अनीमिया है, उससे रिलेटेड प्लेसेंटल डिस्फंक्शंस होते हैं, उसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं और बाद दफा वो अनडिटेक्टेड रहती हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को 39 से आगे नहीं जाने देते, इवन इन कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इवन इन कंट्रोल्ड डायबिटीज। नहीं मैम, अगर पेशेंट डाइट कंट्रोल पे है, लाइफ मॉडिफिकेशन, मैम अगर पेशेंट डाइट कंट्रोल पर है, मेटफॉर्मिन है, तो हम 40 वीक्स पर टर्मिनेट कर सकते हैं ना मैम? हाँ, अगर तो वो ड्रग्स पे नहीं है तो फिर तो हम 40 वीक्स तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं, लेकिन फीटल मॉनिटरिंग डायबिटिक पेशेंट्स में शुरू हो जानी चाहिए फ्रॉम 38 वीक्स ऑनवर्ड। और मैम 38 वीक्स के बाद आप फीटल मॉनिटरिंग शुरू कर लें।
मैम बिफोर 37 वीक्स क्योंकि देखो, क्योंकि जो जिनमें जो पोटेंशियली डायबिटिक भी होती हैं, जो लेटेंट डायबिटिक्स होती हैं, जिनमें ग्लूकोज लोड मिले तो वो पता चलता है, तो उन पेशेंट्स में हम डाइट कंट्रोल टू लिमिट दोज ग्लूकोज इनटेक, हम डाइट कंट्रोल इसीलिए कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें भी रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ इन ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज is increased after 38 weeks and more so after 39 weeks. मैम बिफोर 37 वीक्स हम किन पेशेंट्स को करते हैं मैम? EB में बहुत कम ऐसा होता है जहां पे स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस हो, मैटरनल एंड फीटल बोथ, यानी जिसमें नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी है या फिर कोई वेस्कुलोपैथी है जिसके नतीजे में IUGR हो गया, which is very uncommon when the patient is diabetic. लेकिन if diabetes is associated with any other comorbidity like hypertension और diabetes भी आपस में interrelated होते हैं, तो उस सूरत में आपको बाज़ दफा based on fetal complications आपको करना पड़ सकता है। अदरवाइज हम 37 वीक से पहले सोचते तो नहीं है कि डायबिटिक को हम करेंगे, बिकॉज जो लंग मैच्योरिटी है वो डिले होती है इनमें। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन पूछना था मैम, हम लेबर के दौरान ड्यूरिंग लेबर जो है सी सेक्शन में और SVT में मतलब मॉनिटरिंग में डिफरेंस होता है ना? जैसे अगर नॉर्मल हमारे पास पेशेंट आती है और मल्टी ग्रेविटा है तो मैम हाँ हम जी। तो मैम डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूजन और इंसुलिन इन्फ्यूजन तो स्टार्ट नहीं करते ना? नहीं, देखो जो सी सेक्शन में जो फीटल ये जो है ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग है वो हर आधे घंटे बाद हो रही होती है, यानी वो एनेस्थीसिया देने से लेके मरीज के आउट होने तक हर 30 मिनट के बाद। जो SVD में जो इंट्रापार्टम है वो 1 to 2 आवरली हो रही होती है, एंड मोर सो अगर देखो ये है जनरलाइज, ये एक जनरलाइज चीज है जो मतलब एक एवरेज जो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडिविजुअल पेशेंट्स में ये चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। और इंडिविजुअल पेशेंट्स में सपोज किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है इन इंट्रापार्टम पीरियड में, तो हम उसकी आधे घंटे बाद भी कर रहे होंगे क्योंकि हमने उसको उसके हिसाब से उसकी डोज ऑफ इंसुलिन बढ़ानी है या कम करनी है। तो इसलिए जो है वो इसमें इंडिविजुअलाइज, बट ऑन एवरेज आप जब बात करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको केस बेस्ड डिस्कशन है, यानी केस बेस्ड ये कि आपको इस पेशेंट के पर्टिकुलर पता है, यानी आपको एग्जामिनर ने बता दिया कि इस पेशेंट का एक सेक्शन था, उसके बाद 2 डिलीवरीज थी, अब ये 11 वीक्स पे आ गई, इसके जो HbA1c है वो 6 है और इसके जो ब्लड शुगर लेवल जो फास्टिंग है वो 110 आते हैं और उसके प्री डिनर जो है वो 120 है, या उसके जो पोस्ट प्रेंडियल या पोस्ट ब्रेकफास्ट है, सपोज पोस्ट प्रेंडियल जो है वो एवरेज रेंज उसकी 180 टू 190 है, तो अब आपको पेशेंट का स्पेसिफिक फीचर्स पता चल गए। फिर आपने एवरेज बात नहीं करनी, फिर आप उसमें उस स्पेसिफिकेशन के साथ, यानी आपने उसमें उस पेशेंट के सिनेरियो के हिसाब से फिर बात करनी है कि इस पेशेंट में चूंकि HbA1c इतना है, इस पेशेंट में चूंकि ब्लड शुगर लेवल्स इतने हैं, तो मैं इसके, या अगर फर्ज किया मैं फास्टिंग में कहूँ कि एक फास्टिंग लेवल जो है वो उसका 130 आ गया, तो उस पेशेंट के हिसाब से अब आपने उसको डाइट और एक्सरसाइज सारा कुछ जो बता दिया, तो फिर उसमें तो सेफ तो यही है कि मैं इसको स्ट्रेट अवे हम इंसुलिन शुरू कर दें। उसका BMI सपोज मैं बताती हूँ कि ये इसका सपोज के BMI मैं आपको बता देती हूँ कि 28 है, तो आपको डाइट के बारे में भी पता चल गया कि अब मैंने इसकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कितनी करनी है, या फिर मैंने जो इसकी इंसुलिन की डोज है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो फिर एक स्पेसिफिक चीज हो जाती है। तो इसलिए जो केस बेस्ड डिस्कशन है वो सिर्फ उस केस से रिलेटेड होती है। जो टॉपिक डिस्कशन है आफ्टर गिविंग अ शॉर्ट सिनेरियो और उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन दे दी, फिर आपने एक एवरेज डिस्कशन चलानी होती है कि इसको मैंने 1 to 2 वीक के बाद देखना है, इसको मैंने ये डाइट और एक्सरसाइज देनी है। अगर उसके ब्लड शुगर लेवल जो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द गाइडलाइंस है, तो अगर इसके ब्लड शुगर लेवल एक लेवल से ज्यादा आ जाते हैं, सपोज 126 से ज्यादा आ जाते हैं, या फीटल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन अभी इतनी जल्दी तो नहीं हमें पता चलेगी, लेकिन अगर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें कोई रेटिनोपैथी है या नेफ्रोपैथी वाली चीज है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें इंसुलिन शुरू कर दूंगी। एंड एज हर BMI अगर इतना 27 से ज्यादा होगा तो मैं फिर इसको साथ मेटफॉर्मिन भी कंबाइन कर दूंगी, और जाहिर है उसके वेट के हिसाब से हमने इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करनी है। और इंसुलिन बहुत ज्यादा जब यूनिट्स देते हैं तो उसमें
अगर हम मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करते हैं तो उसमें इंसुलिन डोज थोड़ी सी कम हम देते हैं फिर जब हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं। और कॉम्बिनेशन थेरेपी है व्हेन बीएमआई इज मोर, या फिर हम और बीएमआई ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इंसुलिन की डोज भी ज्यादा हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इंसुलिन इटसेल्फ इज अ ग्रोथ फैक्टर, तो ये थोड़ा सा ये भी जरा इसमें ओबेसिटी को कम करने में इसका वो रोल नहीं होता, मेटफॉर्मिन जरूर करता। जी और कोई क्वेश्चन अगर है तो इससे रिलेटेड? मैडम ये गाइडलाइंस में मैम मेंशन हुआ हुआ है कि अगर किसी पेशेंट का जो है अगर वेरिएबल लेवल्स है और प्रॉब्लमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और लेवल्स बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उस सूरत में हम मैम उसमें कॉन्टिन्यूस जो सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन है मैम इसका थोड़ा सा लेकिन बता वो दें। देखो वो हमें उसमें बेसिकली जिसके जिनके लेवल्स बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं हाइपर एंड हाइपर, और ये अक्सर हम ऑब्जर्व भी करते हैं, तो उसमें कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एज वेल एज कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन, ये दोनों चीजें वर्केबल है। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है वो हर 5 मिनट के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहा होता है। जो कॉन्टिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन है वो बेसिकली स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं जिनसे इंसुलिन जो है वो उसको मुस्तकिल लग रही होती है सबकुटेनियस, वो एक डिवाइस होती है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये उसका एक रोल तो डेफिनेटली है। आप उसमें वही बात है कि फिर आप उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंट उसमें कर देते हो और उसमें फिर थोड़ा सा जो है अब इसमें डाइट का बड़ा रोल आ जाता है जिसमें हाइपो एंड हाइपर। क्योंकि देखो डाइट में हम जो होता है इसकी अब हम ये डाइट कहते तो हैं लेकिन हम उसमें जो डिफरेंट एसेंशियल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहे होते। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। अब ये प्रोटीन और फैट का कितना पार्ट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का कितना होना चाहिए, इसको नहीं फॉलो किया जाता अमूमन। अगर हम सिर्फ इसी चीज को एक रेगुलरली तौर पे हम कर लें, क्योंकि 3 मील्स और 3 स्नैक्स, अब अमूमन जब पेशेंट की ओवरनाइट फास्टिंग ज्यादा होती है तो उसमें उसके बाद फिर रेसिप्रोकल हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, तो जिसको हम मिड नाइट जो है हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, और उसके बाद फास्टिंग लेवल ज्यादा जो प्री ब्रेकफास्ट लेवल है वो ज्यादा आ जाते हैं। तो उसकी भी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप इसको बेड टाइम एक तो आप ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें और इसको एक बेड टाइम स्नैक दे दें। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग डस कॉम्प्रोमाइज द ब्लड शुगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। अब जो डाइट की हम बात कर रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए 45%, प्रोटीन का हिस्सा होना चाहिए 20%, और ये जो बाकी जो है वो फैट तकरीबन इसकी 25% के करीब करीब होती है। बाकी जो है वो थोड़ा सा फाइबर्स और ये बाकी सारी चीजें होती हैं। अब एक कार्बोहाइड्रेट में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, सिंपल वाले नहीं। इसी तरह से प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स जो है वो ये नहीं है कि प्रोटीन्स को सिर्फ आप इसमें एक ही वक्त में दे दें। अब जैसे फर्ज किया इसमें लंच टाइम पे दे दें या सिर्फ इवनिंग टाइम पे दे दें, बिकॉज प्रोटीन जो है वो एक बहुत इंसुलिन की सिक्रीशन को का एक ट्रिगर होता है। तो इंसुलिन के सिक्रीशन का एक ट्रिगर जब होता है प्रोटीन, तो वो हो सकता है उस टाइम पे जिस पे प्रोटीन ज्यादा ली उस पे उसका हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट आ जाए। यही हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट अमूमन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी देखा जाता है, इसी वजह से स्नैक बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस किया जाता है। तो इसलिए जो है ये इसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए इन द 3 मील्स प्रोटीन्स को। तो जब हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे इन द 3 मील्स, तो फिर उसमें जो है वो उसका कम, और जितना ज्यादा जिस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा हो उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, यानी जिसमें बहुत वेरिएबल रेट है, या तो उसकी डाइट को आप रीशेड्यूल करें, रीडिजाइन करें, इस चीज को करें। फिर दूसरी चीज ये है कि उसमें जो आप इंसुलिन की रिजीम दे रहे होते हैं, अब ये जो इससे पहले बल्कि ओरल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओरल जो देते हैं, ओरल अमूमन पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स को ज्यादा मैनेज कर रही होती है, दो एन इफेक्ट ऑन ये जो है फास्टिंग लेवल्स भी, लेकिन ज्यादातर उसका पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स पे ऊपर काम होता है। अब जो इंसुलिन हम दो तरह की देते हैं, जो बेजल है और बोलस है। बेजल हमेशा वो होती है जो एक बेस लाइन इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करती है, यानी जो फास्टिंग लेवल्स को मेंटेन करती है, बेजल इंसुलिन।
तो ये एनपीएच की सूरत में होता है, और जो बोलस है वो रेगुलर इंसुलिन है, जो फास्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है। तो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो पोस्ट प्रेंडियल को कवर करेगी और बेसल इंसुलिन फास्टिंग को करेगी। तो इसलिए हमने ब्लड शुगर लेवल्स हाइपर में जा रहे हैं या हाइपर में जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इसको रीशेड्यूल अगेन कर दिया, उसने हमने कम या ज्यादा कर दिया, तो उसको भी हमने जो है वो उसकी डोज को हमने एडजस्ट करना होता है। तो ये दो चीजें हैं, और बाकी फिर एक्सरसाइज वगैरह उसका तो रोल अपनी जगह है ही है। तो इसको जो है वो फिर आपने इसको वो करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला जो होता है, इंसुलिन तो डॉक्टर खुद लगा रहा होता है या स्टाफ नर्स लगा रही होती है, तो वो वाली चीजें। और दूसरी चीज ये कि इंसुलिन की कैलकुलेशन, कभी कभी जब हम देखते हैं अपनी स्टाफ नर्सेस से भी पूछें कि इंसुलिन कैसे लगाई, तो बहुत सारे बार दफा हमें फॉल्ट्स नजर आते हैं कि उसकी कैलकुलेशन, उसकी मिक्सिंग, तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको फिर रिव्यू करने की जरूरत होती है कि अगर आप कंबाइन वाली दे रही हो, यानी अगर आपने एनपीएच और रेगुलर आपने दी हुई है मॉर्निंग पे या इवनिंग पे, तो उसको लगाया कैसे जाता है, उसका थोड़ा सा उसको थोड़ी सी मिक्सिंग करनी होती है, उसको लगाना होता है, लगाने का तरीका क्या है। तो ये सारे, क्योंकि अगर ये बहुत थिन स्लिम पेशेंट जो होते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर भी जाने के रिस्क होता है, जिसमें बहुत वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होगी और उससे लेवल्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको रीएड्रेस करने की जरूरत है अगर पेशेंट में हाइपर वाली चीजें एग्जिस्ट करें तो। ठीक है। हाँ मैम जी। ये मेटफॉर्मिन कितने बीएमआई पे हमने मैम स्टार्ट करनी है? मेटफॉर्मिन जो हमने इंसुलिन के साथ देनी अगर है तो कितने बीएमआई पे हाँ। स्टार्ट करनी? ये बेसिकली इसका बीएमआई अमूमन देखो 27 इज टेकन एज अ कट ऑफ। बीएमआई जो हम उसको जो है इसका ओबेसिटी में जो काउंट वैसे तो होता है जो वो 30 से ऊपर चला जाता है, लेकिन इंक्रीज्ड वेट हम लेबल कर देते हैं जब बीएमआई इसका 27 हो। अब बीएमआई की कैलकुलेशन इन प्रेगनेंसी इज अनदर क्वेश्चन कि हम बीएमआई प्रेगनेंसी में कैसे कैलकुलेट करें। वो अमूमन हमेशा प्री प्रेगनेंसी वेट पे होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान में तो वेट गेन होता है, और वो वेट गेन जो है वो वेरिएबल है फ्रॉम 7 to 24 kg इन होल ऑफ द प्रेगनेंसी। किसी का वेट गेन कम हो रहा होगा, किसी का वेट गेन ज्यादा हो रहा होगा, तो बीएमआई तो उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन बीएमआई जब हम डोज ऑफ इंसुलिन कैलकुलेट करते हैं तो वो उसके एब्सोल्यूट वेट एट दैट टाइम पीरियड, यानी पेशेंट का अगर वेट 70 kg है या किसी का 60 kg है या किसी का 90 kg है, तो उसके हिसाब से उसकी इंसुलिन की डोज कैलकुलेट होती है। तो अमूमन बीएमआई जब 27 से ज्यादा हो तो उस पे हम फिर मेटफॉर्मिन कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। मैडम ये जो टोटल डोज सॉरी, ऑफ बीएमआई इंसुलिन, कह रही हूँ, मेटफॉर्मिन हम कंबाइन कर देते हैं बीएमआई 27 से ज्यादा। ठीक है। हाँ जी, जी बताइए। मैम ये जो टोटल डोज ऑफ इंसुलिन है मैक्सिमम कोई है मैम इतनी, मतलब इसको 40 यूनिट्स या 60 यूनिट्स हैं तो नहीं, उसके बाद हम ऐसा कोई कहें कि मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज नहीं है इसमें, वो तो जाहिर है आपने वेट के हिसाब से करनी है। अब हमारी जो कैलकुलेशन ऑफ इंसुलिन है अकॉर्डिंग टू वेट हमारी कम रेंज में होती है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन इन द अदर गाइडलाइंस। तो क्योंकि हम जो है वो अपनी जो कैलकुलेशन है इंसुलिन की वो स्टार्ट करते हैं 0.6 से लेके, और मैक्सिमम जाती है 1 तक, और 1 पे भी जाती है 38 वीक्स के बाद। तो इसलिए जो है हमारी कैलकुलेशन जो इंसुलिन की है वो थोड़ी सी लोअर रेंज में आती है, और हमेशा वैसे इसको लोअर रेंज में ही इंसुलिन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली जो चीज है वो बहुत फर्क होती है, एंड दैट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअलाइज्ड होती है। तो इसलिए जो है वो उसको हमें लो डोज से शुरू करके फिर हम डेफिनेटली उसको बढ़ा या कम ज्यादा ये कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें फिर आप, मेरा ख्याल है हो गया आज का। जी एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज जी जी। कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर एक हम्म। पेशेंट का सेक्शन हुआ है तो सेक्शन के बाद हमने उसके अभी तक एंट्रो पेशेंट है तो हम उसके लेवल्स कैसे कराएंगे, और अगर हमने उसे घर भेज देना है उसी सेक्शन वाली पेशेंट को तो अब हम उसे प्री मील को कैलकुलेशन का कहेंगे या पोस्ट मील कहेंगे, और इसके टारगेट्स क्या होंगे? क्योंकि नहीं देखो, हाँ जी हाँ जी। जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती उसमें हम ज्यादातर प्री मील कर रहे होते हैं, उसके टारगेट लेवल भी चेंज होते हैं, जैसे 126 फास्टिंग या 200 से अबव होगा वो चेंज हो जाते हैं टारगेट लेवल्स। तो हमें डेफिनेटली इसको टारगेट लेवल चेंज हो जाते हैं उसमें, प्रेगनेंसी के बाद या मतलब जो बर्थ के बाद जो है, डिलीवरी के बाद या सेक्शन के बाद टारगेट लेवल 6 वीक्स के बाद ये चेंज हो जाते हैं।
अमूमन 6 वीक्स का टाइम पीरियड वो है जिसमें हार्मोनल चेंजेस सारी रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। 6 वीक्स का टाइम पीरियड इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए उसमें फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाला प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन डोज जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है इवन इन द टाइप 2 डायबिटीज। इट कैन बी ऑल टुगेदर नील इन GDM, और समटाइम्स जिनमें हम ओरल देते हैं, ओरल क्योंकि पेशेंट को हमने देखो ओरल पे डाल के घर भेजना है इफ फिजिबल। अगर टाइप 1 नहीं है तो टाइप 2 में तो हम ओरल दे सकते हैं, टाइप 1 में तो मजबूरी है इंसुलिन देना। लेकिन इसमें GDM में तो बाद दफा बिल्कुल जरूरत नहीं रहती, लेकिन GDM भी तो कन्वर्ट हो सकता है 50% इन टू टाइप 2। यही वजह है कि उसमें फिर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें लाइफस्टाइल एडेप्टेशन के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। अब जब पेशेंट ने घर पे जाके चेक करना है तो घर पे जाके वो दिन में सिर्फ 2 लेवल्स चेक कर सकता है, या हफ्ते में भी बाज दफा हम उसको 2 फास्टिंग और 2 पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स का कहते हैं। Once the control is achieved on whatever treatment, चाहे वो डाइट अलोन हो, चाहे वो ओरल अलोन है, या फिर इंसुलिन, टाइप 1 में तो इंसुलिन ही होगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को फिर हमने सिर्फ उसका फिर रिव्यू करना होता है ऑन द फॉलो अप, कि उसका ब्लड शुगर प्रोफाइल कैसा रहा। उसके हिसाब से फिर हमने उसका फर्दर मैनेजमेंट प्लान के ये अब या उसकी डोज टाइट्रेशन जो है वो उसके हिसाब से करनी होती है, वो रिकॉर्ड जो उसने मेंटेन किया हो। अब ये बात है कि इसमें हम इसको सेक्शन के बाद हम इसको फॉलो कैसे करते हैं। अब देखो सेक्शन के बाद जब तक पेशेंट NPO है, तो पेशेंट जब तक NPO हो उसमें कम से कम 2 to 4 आवरली हमने उसका ब्लड शुगर प्रोफाइल करना है फॉर इनिशियल 6 आवर्स। अमूमन 6 आवर्स के लिए हम NPO करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लेटर ऑन NPO रखा जाता है अकॉर्डिंग, जब तक गट साउंड्स रिवर्ट नहीं होती। और डायबिटिक पेशेंट्स में NPO शुड बी फॉर द मिनिमम टाइम, जितना रिक्वायर्ड है उसमें मिनिमम टाइम के लिए उसका NPO जल्दी ब्रेक कर देना चाहिए। तो इसलिए जो है वो उसमें हमने उस NPO पीरियड, NPO खत्म होने के बाद हम ये फ्रीक्वेंसी 8 आवरली तक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो उसको उसके हिसाब से पेशेंट जो है वो, अब उसको इंसुलिन की अगर रिक्वायरमेंट हमने फर्ज किया हाफ कर दी, टाइप 2 है लेकिन इंसुलिन पे हमें डालना पड़ा था और अब इंसुलिन की डोज हमने हाफ कर दी, तो ग्रेजुअली इसको स्विच ऑन करके ओरल पे व्हेन इट इज फीजिबल, या जैसे जब तक स्टिच हील नहीं हो जाते या उसका जो 7 डेज का टाइम पीरियड है उस वक्त तक देके उसको स्विच ऑन करके टू ओरल, देन वी सेंड हर होम। और फिर उसके बाद जो वाले लेवल्स हैं वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, तो ये है जो हमारा इसमें मैनेजमेंट प्लान होगा। ठीक है, मैं तो आपने बताया कि 2 फास्टिंग और 2 पोस्ट प्रेंडियल लेवल उसको हाँ कह के जी, भेजे। एक हफ्ते में अमूमन ये उनमें है जिनमें कंट्रोल्ड है। जिनमें कंट्रोल नहीं था डेफिनेटली हम पेशेंट को फॉर लॉन्ग टाइम तो हम नहीं रख सकते, लेकिन जिनमें कंट्रोल थोड़ा सा या बॉर्डर लाइन कंट्रोल भी है, ग्रॉसली अनकंट्रोल के साथ तो नहीं भेजते, लेकिन जिनमें बॉर्डर लाइन भी अनकंट्रोल्ड है उसमें ये फिर जो लेवल्स हैं ये फिर पर डे हो जाएंगे, एक फास्टिंग एक रैंडम डिफरेंट टाइम्स पे रोटेट करते हुए, ये फिर डेली बेसिस पे हो जाएंगे। यानी डेली बेसिस पे हमने जो 6 दफा करना था वो अब 2 दफा हो जाएगा। मैम मुझे वो ही कंफ्यूजन है कि पोस्ट प्रेंडियल ही करवाएं कि प्री प्रेंडियल करवाएं, मैं बस ये नहीं, पूछना चाह रही मैं वही तो कह रही हूँ, एक प्री प्रेंडियल अगर डेली बेसिस पे करना है, एक प्री प्रेंडियल एक पोस्ट प्रेंडियल, दोनों लेवल्स हमने चेक करने हैं। और जब हमने ट्वाइस अ वीक करना है तो फिर उसमें ट्वाइस अ वीक 2 फास्टिंग 2 पोस्ट प्रेंडियल, हमने दोनों का लेवल्स देखना है कि फास्टिंग बाद दफा पोस्ट प्रेंडियल ठीक आते हैं, फास्टिंग लेवल ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल ज्यादा आए और फास्टिंग लेवल ठीक आए इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग विद द डाइट, तो देन यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द डाइट। ठीक है, चलें जी, अब हम आज GDM तो फिर नहीं डिस्कस कर सके, फिर नेक्स्ट टाइम हम GDM कर लें या और कुछ करना चाहते हो जी? मैडम GDM ही कर लें। GDM कर लें, GDM GDM कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम GDM करना है, चलो ठीक है। फिर आप लोग अपने कोई 2-3 केसेस फिर लेके आया करो, क्योंकि देखो हर पेशेंट का जो सिनेरियो होता है वो फर्क होता है, और उसमें जो वेरिएबिलिटी इन प्रेजेंटेशन होती है या वेरिएबिलिटी इन द मैनेजमेंट प्लान है वो डिस्कस हो जाती है। क्योंकि फिर अब यूनिफॉर्म उस तरह एक तो होती है जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पेशेंट के हिसाब से फर्क भी होती हैं, तो वो चीजें फिर कम से कम आपको उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम GDM डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज तो इतना टाइम ही नहीं था।
चलें जी, फिर अब हम इसको बंद करते हैं।